Hello students, how are you? Hope all of you are fine, safe and healthy during this lockdown period and during the vacation. Myself, Ravi Srikande, welcomes you at the Sanjeevani Education Group, which provides great coaching for the foundation courses from standard 5th to 10th. Sanjeevani Education Group has taken an initiative to provide online coaching for their students during the lockdown period to overcome their loss in the studies. So as a part of this initiative, let us start our syllabus for the 7th standard. So first, we will try to understand the syllabus of chemistry which we have drafted for the standard 7th, which can cover all your syllabus for the foundation as well as your CBSE board as well as your state board. So this syllabus is a cumulative of all the what we can say all type of boards and all type of foundation. Okay, so which is very beneficial for you to understand the subject very well. This knowledge or what we can say this information, these studies, okay, will be very beneficial for you in the next standard also, okay, and for the future also, like some competitive exams like Dr. Homi Baba examination is there, okay, then NTSC exam is there, for higher classes for 11th 12th IIT exams are there, NEET exams are there, okay, and for that purpose you should know about the competitive study, okay, you should know about the way of study, okay, how you have to study for this competitive examination, okay. So let us see which chapters or which topics we have drafted for your syllabus in the 7th standard, okay. So first we will try to discuss about the first part, okay. Total there are 6 chapters for you of chemistry only, okay. Physics is different, biology is different, okay. So we are not going to conduct the science what we can say in a cumulative manner. We have separated the science into 3 subjects, okay, 3 main subjects, that is chemistry, physics and biology. So these 6 chapters only belongs to the chemistry, okay. Among these 6 chapters, I will give you the information, what we can say introductory idea about the first 3 chapters. Okay, first chapter we are going to discuss about the acid, bases and salts, okay. In second chapter we are going to discuss about the water, and in third chapter we will discuss regarding to the fiber to fabric, okay. So these 3 chapters are what we can say informative तो है ही, साथ में ये आपके लिए applicable भी रहेंगे. These chapters are so applicable. So let us move towards the first chapter of our syllabus, that is acids, bases and salts, okay. So before starting the chapter, I would like to ask you some question, okay. Can I? Yes, definitely I can, okay. So have you taken the taste of lime juice? कभी आपने lime juice का taste किया है? Have you even touch or feel the touch or texture of soap, bath soap? Okay, कभी किया है आपने? किया होगा, definitely किया होगा. But क्या है ना, when we do such things, we are not concerned about those things. हम concerned नहीं होते और we are not alert, okay? Because these are our daily routine practices. ये हमारे daily routine practices होती है, so इतना ध्यान हम देते नहीं है, ठीक है? So if you have taken the taste of lime juice, you feel that it has sour taste. उसका जो taste होता है वो कैसा होता है? sour taste होता है. तभी समझ में आता है हमें, ठीक है. अगर आपको बताया भी नहीं किसी ने कि दिस इज द जूस ऑफ लेमन, ओके, और दिस इज द लेमन जूस, ओके, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट बाय टेकिंग द टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट दिस टेस्ट बिलोंग्स टू द लाइम जूस. ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट किसका है? लाइम जूस का ही है, ये आपको पता है, ठीक है. देन इफ यू हैव टच्ड द सोप, ओके, यू गॉट अ स्लिपरी टेक्सचर, ओके. आप जब उसको टच करते हो ना तो आपको एक स्लिपरी टेक्सचर मिलेगा वहां पे. इस स्लिपरी टेक्सचर से भी आप पहचान सकते हो कि यस डेफिनेटली इट इज अ सोप. तो ये है क्या? दोनों चीजें है क्या, ठीक है. पहला जो है तो उसका सोर टेस्ट है, और दूसरा जो है तो उसका जो टेक्सचर हम देखते हैं तो वो क्या है? थोड़ा सा सोपी है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास. यू हैव the taste of grapes, okay, you have taste of tamarind, okay, then you have taste of
नीम, ओके, नीम, इट हैज अ बिटर टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है. सो यू हैव द टेस्ट, यू हैव द नॉलेज ऑफ टेस्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ने चैप्टर का नाम तो बता दिया, the name of chapter is acid, bases and salts, and sir giving us some example of curd, okay, tamarind, lime juice, neem, okay, then texture of soap. Why these are? Because all these things are related to the acid and bases. ये सारी चीजें जो है acid और bases से क्या करती है, belong करती है. If you have seen the advertisement of soap, आपने कभी advertisement देखा soap का? There is one advertisement, if you don't remember, but I have seen that ad. In that ad is of a famous brand of soap. Okay, one of the famous brand of soap. It is so what we can say soft, means that company, that industry announced that the soap is so soft. मतलब उनका एक announcement है कि हमारा soap अलग है सभी soap से जो आप use करते हो. And for that purpose they have taken the litmus test of that soap. आपने देखा होगा वहां पर कि वो लिटमस टेस्ट करते, कुछ सोप का करते तो सोप में दिखाई देता है कि वो सोप कैसा है. वो जो लिटमस टेस्ट है, लिटमस पेपर है, वो ब्लू कलर का हो जाता है. दैट लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर. बट जब ये इनके खुद के सोप पर वो अटैच करते तो वो कलर चेंज नहीं होता है. तो वो एग्जैक्टली वहां पर बताना क्या चाहते हैं, उनका ये कहना है कि द सोप is not that much of alkaline, that much of basic. उनका कहना है कि जो सोप वो यूज कर रहे हैं, जो सोप वो एज अ प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज नॉट मच ऑफ बेसिक. यस, डेफिनेटली जो सोप हम यूज करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, व्हाट एवर सोप्स वी आर यूजिंग. सो ये लिटमस टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन होगा, इट कैन हार्म अवर स्किन, वो हमारी स्किन को हार्म कर सकते हैं. तो ये प्रूफ करने के लिए वो वहां पर लिटमस टेस्ट ले रहे. मीन्स वी आर वेरी मच सराउंडेड बाय द what we can say acids and bases. We know that we have divided matter into different types, elements, say compounds, mixtures, okay, but the matter is also divided into, compounds are also divided into two groups, maybe in three groups also, okay, acid, bases and salt. But today's our discussion is only regarding to the acids and बेसिस, एसिड्स और बेसिस से रिगार्डिंग हमारा रहेगा. ठीक है. सो हम पूरी तरह से एसिड्स और बेसिस से घिरे हुए. अगेन, व्हेनेवर वी प्रोनाउंस अ वर्ड एसिड, व्हाट कम्स इन आवर माइंड? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब मैं एसिड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करता हूं, मैं जब बोलता हूं कि एसिड, आपके दिमाग में पहले क्या आता है? सोचिए क्या आता है दिमाग में. जब मैं छोटा था तब जब भी कभी एसिड वर्ड यूज होगा, इफ द एसिड वर्ड इज was pronounced by my teacher, okay, I get scared. Yes, डर लगता था मुझे. Why? Because there are so many misconceptions regarding to acid were introduced, were bombarded in my mind due to the different things, okay, through the newspaper, okay, through the news, okay. ये सारे एक जो मिसकंसेप्शन है बम्बार्ड हो गए थे. एसिड बर्न्स द स्किन, एसिड इज डेंजरस, ओके, एसिड बर्न करता है, एसिड क्या होता है, डेंजरस होता है, एसिड ये होता है, वो होता है, बहुत सारे इंसिडेंट थे. बट व्हेन आई वाज आई थिंक इन द 7th standard at that time, and teacher told us that some organic acids are very useful for us as a nutrients. I got surprised. टीचर हमें पढ़ाते समय ये बोल रहे थे कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, जो हमारे फूड स्टफ का पार्ट होता है, जो खाना हम खाते हैं उसका पार्ट होता है. तो आई गेट टोटली कंफ्यूज एट दैट टाइम. मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है, क्योंकि पहले मैंने ये सुना था कि एसिड क्वाइट डेंजरस और एसिड इज हजार्डस. एसिड क्या होते हैं, हजार्डस होते हैं. बिकॉज इट वॉज टोटली फिटेड इन माई माइंड, वो पूरी तरह से फिट हो चुका था मेरे माइंड में कि नहीं, ये एसिड डेंजरस ही होते. सो हाउ द एसिड्स आर यूजफुल फॉर अस. सो वी आर हियर गोइंग टू व्हाट वी कैन से इरेडिकेट दोज मिसकंसेप्शंस फ्रॉम आवर माइंड. हमें क्या करने हैं कि वो जो मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड से दूर करने हैं. ठीक है.
remember one thing, acids are of two types, which I'm going to explain. Organic acid, mineral acid. Mineral acids are difficult to handle, but organic acids are the part of our body, part of our nutrition system. Okay, therefore those are not hazardous. वो hazardous नहीं होते हैं. That you have to remember. And those misconceptions I'm going to re-eradicate. Okay, in this chapter, मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा, I will try to eradicate those misconceptions from your mind. So let us move towards the introductory part of this chapter, that is acids and bases. हम definition देखेंगे acid और bases की. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं acid. What is mean by acid? See here, these are सोर इन टेस्ट. ये क्या होते हैं? सोर होते हैं टेस्ट में. These are sour in taste. Means the substances which are sour in taste contain acidic ingredients and their solutions are known as acid. See here, acid जो होते हैं substances, acid are substances containing acidic ingredients. What is meant by ingredients? Ingredients का मतलब क्या होता है? Ingredients means what? The part. Okay, उसके अंदर कुछ ऐसे ingredients होते हैं कि जो उसको acid बनाने के लिए क्या होता है? Important होते हैं. Which are those ingredients? जैसे जैसे हम higher classes में जाएंगे आपको पता चलते रहेगा कि what is meant by ingredients, which are the ingredients which are responsible for the acidic nature of the acids. Okay, today, but you should be in contact with the chapters. Okay, it is not the part of only 7 standard syllabus. This is the part of your study. Remember, it is a part of your life. ये आपके लाइफ का पार्ट है. Don't take it as a syllabus of a particular class. Science is not a syllabus of a particular class. Science is what we can say a part of our life. ओके, और उसी वे में आपको क्या करना है? इसको स्टडी करना है. ओके, सो इसका बेसिक एग्जांपल सोर टेस्ट के मैंने जैसे दिया है आपको कि कर्ड इज द बेस्ट एग्जांपल. ओके, टैमाराइंड, ग्रेप्स, वी आर टोटली सराउंडेड बाय द एसिड्स. ओके, इवन रेड एंट. ओके, व्हेन रेड एंट बाइट्स अस, ओके, वी फील व्हाट वी कैन से इरिटेट होता है वहां पर. ओके, burning sensation होती है, small bump is formed there. Okay, why this burning sensation is there? Because when it bites or stung us, okay, what happen? It releases the formic acid, okay, on our skin, and that formic acid, due to that formic acid, we feel a sensation of burning there. Okay, so contain the acid. उसके अंदर भी क्या होता है? Acid होता है. Now what is meant by base? Base क्या होता है? Okay, these are bitter in taste. Bitter in taste. ये क्या होते हैं? Bitter taste के होते हैं. जैसे नीम है, soaps are also there. Okay, you can understand the acid and bases with different what we can say simple physical taste. कुछ टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट का यूज करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो whether the given substance is acid or base. Okay, if the substance is sour, it can be considered as acid. Okay, acids are what we can say difficult to touch. acid को ऐसे touch नहीं करना चाहिए actually. Okay, but समझ में आ जाता है. soaps bitter होता है, but texture soap का जो होता है slippery होता है. Okay, या फिर बेसेज जो होते हैं तो वो कैसे होते हैं? स्लिपरी होते हैं. आप NaOH के अगर आप ग्रैन्यूल्स देखोगे तो वो भी क्या होते हैं? पैलेट्स देखोगे तो वो भी स्लिपरी होते हैं. ठीक है, आप सोप को टच करोगे तो वो भी क्या होता है? स्लिपरी होता है. ठीक है, बट डू यू थिंक दैट इट इज गुड मेथड टू अंडरस्टैंड द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट? ओके, विद द हेल्प ऑफ टेक्सचर? नो, समटाइम सम एसिड कैन हार्म यू. कुछ एसिड जो है तो आपको क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं. ठीक है, सो वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द एसिड फर्स्ट. ओके, ट्राई टू इरेडिकेट द मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग टू एसिड. जो मिसकंसेप्शन है वो दूर करने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड. एसिड की 2 टाइप हमें देखने हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड. लेट अस सी.
types of acids. Okay, the first one is mineral acids. Okay, and the second one is ऑर्गेनिक एसिड. सी यार, मिनरल एसिड में जो होता है तो मिनरल्स होते हैं जनरली. इनऑर्गेनिक एसिड भी हमको कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज देयर, सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर, नाइट्रिक एसिड इज देयर. ऑल दीज आर द मिनरल एसिड्स एंड दीज एसिड्स आर hazardous for us. Okay, the concentrated solution of these acids may harm you. Okay, because is the burning sensation. इनकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है और यही डेंजरस होते हैं. आप इसको अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर और अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट इसको यूज कर सकते हो. ओके, एंड वी यूज द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड्स. हम डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं यूज करते. डाइल्यूटेड मींस वाटर ऐड करते करते इनका इतना डाइल्यूशन हम कर देते, इतना कम कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन कि फिर वो हमारे लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है यूज करने के लिए. ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ अवर डाइट, पार्ट ऑफ अवर सिस्टम. हमारे सिस्टम का क्या होता है, पार्ट होता है. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. कौन से? ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट मे बी प्लांट और इट मे बी एनिमल. एनिमल हो, प्लांट हो, किसी में भी आप ऑर्गेनिक एसिड क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, दिस ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट मच हजार्डस और दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर डाइट. हमारे डाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड. ओके, एसिटिक एसिड जो ब्रांड नेम है एसिटिक एसिड का, विनेगर. ओके, विनेगर इज 6 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो हम यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं. देन टार्टारिक एसिड. टार्टारिक एसिड इज द पार्ट ऑफ टैमारिंड. टैमारिंड सुना होगा आपने, टैमारिंड में होता है टार्टारिक एसिड. ओके, आल्सो टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन द ग्रेप्स. ग्रेप्स में होता है तो हम इसको यूज करते हैं. टार्टारिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन अनदर इंपॉर्टेंट एसिड इज देयर, ascorbic acid and citric acid. Have you heard about the citrus fruit? Okay, both these acids are the part of vitamin C. आपने कभी सुना होगा citrus fruit, सुना है? स्वीट लेमन है, आंवला है. इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है. विटामिन सी का मतलब क्या है, इनमें आप सिट्रिक एसिड भी आपको मिलता है और एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है. ओके, सो ascorbic acid and the citric acid are the part of vitamin C. There are number of acids there, okay, which are very important for our diet. जो हमारे डाइट के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फॉर्मिक एसिड है, ओके, ब्यूटेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है. डू यू नो लैक्टिक एसिड? वेयर द लैक्टिक एसिड इज देयर? लैक्टिक एसिड इज जनरली फाउंड इन कर्ड. लैक्टिक एसिड कहां पर होता है? कर्ड में होता है. बटर, यू नो बटर. ओके, इट इज ड्यू टू द ब्यूटेरिक एसिड. वो ब्यूटेरिक एसिड की वजह से होता है. सो देयर आर सो मेनी एसिड्स. ओके, बहुत सारे एसिड है, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट देम. हमें डिफरेंशिएट करना है विच आर हजार्डस टू यूज एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर डाइट, जो हमारे डाइट के लिए इंपॉर्टेंट. इसीलिए हमें स्टडी भी करनी है. ठीक है, हाँ, एक चीज है, दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, these acids have greater strength. okay, ये जो एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. these acids are mild acid. ये काफी माइल्ड होते हैं एज कंपेयर टू द मिनरल एसिड. ओके, सो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है. ओके, सो आपको बस इतना अभी फिलहाल में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ध्यान में रखना है कि एसिड क्या होते हैं. ठीक है, जो डिस्कशन हमारे बेसिस, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय बेसिस. एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट. ओके, which can cause burning sensation on touching. okay, वो burning sensation भी cause कर सकते. remember one thing, these two conditions are what we can say sufficient to understand the acid. okay, in very simple way. but what happen actually, to understand the acidic nature of a substance by taking the taste or by texture, okay, is not a good method for a chemist. chemist के लिए अच्छे मेथड नहीं होते. केमिस्ट डू ऑल द थिंग्स व्हाट वी कैन से प्रैक्टिकली. उसको प्रैक्टिकली करने होते, मतलब केमिकल बिहेवियर से वो क्या करने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है. ठीक है, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. अगेन
देखिए HCl जो है तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि HCl इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं HCl सिक्रेट करते हैं। HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए HCl क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, HNO3 का भी इंपॉर्टेंस है। HNO3 इज यूज्ड फॉर पैसिवेशन टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर्स विच कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रेट सॉल्ट जो होते हैं वो बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यूज फॉर द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डू यू नो दैट डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। सो हर एक एसिड का कुछ ना कुछ यूज है, वेदर इट में बी मिनरल एसिड और वेदर इट में बी ऑर्गेनिक एसिड। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग्स। आपको इस पर थोड़ा सा क्या करना है, फोकसिंग करना है। और मैंने जो कहा है कि एसिड के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है वो हमें दूर करने हैं। that I will try to remove, okay, as the chapter what we can say proceed। जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इरेडिकेट करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे जो मिसकंसेप्शन एसिड से रिलेटेड आपके दिमाग में है। ठीक है, दिस चैप्टर इज क्वाइट व्हाट वी कैन से वॉस, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस चैप्टर वेरी स्लोली, वेरी इन इंटरेस्टिंग मैनर। ओके, हम इसको इंटरेस्टिंग मैनर में भी क्या करेंगे, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर टुडे इट्स ओके। Please try to what we can say, hear this lecture again and again. Try to view this lecture again and again. If you have any doubt after the listening the lecture, you can ask your doubts on our class group. Okay, आपका एक स्पेशल जो ग्रुप होगा वहां पर आपको ये डाउट्स क्या करने हैं, पोस्ट करने हैं, या फिर ये डाउट्स आप वहां पर पूछ सकते हो। ओके, आफ्टर वन अनदर लेक्चर आई एम गोइंग टू post a DPP or worksheet regarding to this. So I come to know understanding your understanding. I come to know your understanding regarding to this chapter. Okay, so please try to make some notes after the what we can say listening the lecture. जब आप पूरी तरह से लेक्चर ऑब्जर्व कर लोगे, आप समझ पाओगे, तो उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं that you have to share with me if you have any doubt. Okay, so this is okay for today. Thank you very much, student.